Alright. So welcome to the very first lecture of the Linux system administration. My name is Pramod Gupta. I have done masters from BITS Pilani. I'm a software engineer by profession with more than 6 years of experience. Currently, I'm working in the MNC called Avaya India. It is a US-based company. Its headquarters is based in Pune. And I have been trainer at SITS since almost, it has been more than 10 years. In Linux, uh, if you are a backend developer or a DevOps or mostly backend and DevOps, most importantly, especially DevOps. DevOps means those who do developer operations. This all will be clear in future when I'm taking the course. So this course is about them. When you are starting your career, people expect you to know about the Linux or the Unix based system. Am I audible? Am I clearly audible? Yes, sir. Okay. What will you gain after doing this course? I understand this is a part of your curriculum in the BSc IT, but as career point of view, this is most important. Why is this most important? Because this is basic. It is considered to be basic. When you go out in the job and you do not know simple thing which we are going to learn in this course, people are going to get angry or people will ask you what you have done in college. So this is fundamental course. Again, if you want to be DevOps, there are many career opportunity for DevOps. DevOps do not code. They actually handle developer operations like managing system, managing cloud, and number of things. I recently saw a post where DevOps, one of the DevOps got, he had 8 years of experience. He got salary of 1.1 crore in India. You can mute yourself, okay? Only when you are please mute yourself. Now it is all right. I thought you are not paying attention to the lecture. Anyways, I went through one post in which it was said that a developer in Bangalore with a DevOps engineer in Bangalore with 8 years of experience got 1.1 crore in package. So you can also get that if you become a DevOps engineer. Other than that, if you're a backend engineer, which do not write, backend engineer means they do not interact with the front end like HTML, CSS, JavaScript, and other things. So if you're a backend engineer, then also you need to know about the this thing, system administration very well. All right. If you have question, you can type in chat also, or you can unmute yourself and talk to me. So today's lecture is about the introduction. The actual course will start in later lectures. Today we will go through the syllabus first. So your syllabus is divided into 5 parts. In first part, we will cover the basics of Linux. What is Linux? What is Unix? What is Red Hat? Enterprise Linux, which is called RHEL in short. What is CentOS probably. Then you will go through simple command line commands. You will see the what is shell, what is called bash, what is KSH, other simple things, and very basic command like change directory and pwd and etc. I will show you all of that. Okay. System administration tasks. If you are if you are an admin of a system, what you need to do, and managing softwares. Okay. In this second unit,
you can see on my screen. It is configuring and managing storage, connecting to a network, and you working with user group and permission. So this is all very important. This is there. This all the course detail which you are saying is day-to-day life of the DevOps engineer. Okay. Then in third unit, you are working with IP tables. What are IP tables? So if you want to manage the network of your machine, then IP tables come into the picture. And setting up cryptographic services, that is whatever you have on machine, it is obfuscated, it is stored in secure way, and then configuring server for file sharing. So you have you have created a server where file can be shared with everyone, that kind of thing. All right. In fourth, we will learn about DNS and DHCP. These are protocol. These are protocol for your IP configuration. Then setting up a mail server. You will set up a mail on your Linux system so that mails can come to your machine and you can send mail to other clients. Gmail is a mail server, for example. Now then configuring Apache and Red Hat Enterprise Linux. That's the other thing. Apache is used as web server. I'm hoping most of you would have gone through the basics of the other courses. If not, you can ask me what is Apache, what is web server. I will tell you. Okay. The last unit, fifth unit is introduction to Bash shell scripting. There are many shells. Shell is command line terminal. And when I'm going through the lectures, I will show you what is Bash, what is KSH, and what are the other things you need to learn. You need to be ready. You should have knowledge if you are going in the field to the job. Then HA, high availability clustering. So what does high availability means? Suppose you have a server. Now in the real world, uh, reliability is very much important. You would know if Instagram server crashes or WhatsApp server crashes, कितना ज़्यादा शोर हो जाता है दुनिया के अंदर कि अरे गूगल काम नहीं कर रहा है ऐसा. तो this high availability means even if one of your machine got down, you are ready with the backup server. ठीक है, उसको बोलते हैं high availability. एक बैकअप सर्वर हो सकता है, दो बैकअप सर्वर हो सकता है, ऐसा होता है. और फिर उसमें क्या होता है कि टर्न अराउंड टाइम शुड बी मे बी इन मिनट्स. ठीक है, एक सिस्टम क्रैश हुआ तो तुरंत दूसरा सिस्टम अप ऑन होना चाहिए. यूजर को पता ही नहीं लगना चाहिए कि यार एक सिस्टम क्रैश हो गया. दिस इज हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टरिंग. The last one is setting up an installation server. तो this in short is your course details. उसके बाजू में लेक्चर लिखे हैं, टोटल इज 60 आवर्स. तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 एक एक यूनिट को हम लोग पढ़ते जाएंगे. ओके. इसके बाद हम लोग आते हैं कि व्हाट आर द बुक्स एंड रेफरेंसेस. तो आप लोग जनरली कौन से बुक्स फॉलो करते हो? Can someone tell me in chat? आप लोग सिलेबस में जो दिया वो बुक्स फॉलो करते हो या टेक्निक्स वगैरह फॉलो करते हो? Am I audible? I don't think I'm audible. तो मैं शायद वापस पिछले स्लाइड पे जाऊँ क्या? Am I audible? Yes, sir. Thank God, I'm audible, right? तो फिर कोई टाइप Actually, sir, hello. हाँ. So voice is not that clear. Actually, it's little bit. It's breaking. Are you saying the voice is breaking? Yes, it's breaking, sir.
ठीक है, लेट मी चेंज द नेटवर्क. Am I audible now? ऑनलाइन पढ़ते हैं, नो बुक्स. ओके, एम आई ऑडिबल ना? वैसे ही आवाज आ रहा है कि पहले से बेटर है कि पहले से खराब है? हेलो. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो सर, हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, तो एकदम स्टार्ट बोलने का, एकदम फटाफट, इसमें क्या वेट करने का. आप अंडरस्टैंड, दिस इज अ क्लासरूम लेक्चर इटसेल्फ. ठीक है, ऑनलाइन वगैरह में हम लोग ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं, मजा नहीं आएगा. ठीक है, तो अगर आवाज अच्छे से आ रहा है तो shall I go through the last slide again? लास्ट स्लाइड में मैं पूरा सिलेबस मैंने कवर किया कि अच्छा, सिलेबस क्यों कवर किया. पहले लेक्चर से ऐसा जा सकता था ना कि फटाफट फटाफट सब कंप्लीट करने का, ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. आपको पता क्या रहना चाहिए, कोर्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ने को आने वाला है. ठीक है, एक पूरा ओवरव्यू रहना चाहिए आपको कि मेरे को इतना सब कुछ कवर करना है एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए. ओके, और सेकेंड थिंग, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन रियल लाइफ में उसका जरूरत क्या है. अंडरस्टैंड दैट यू आर नाउ इन योर ग्रेजुएशन, तो आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन होना ही चाहिए, वरना आपका पढ़ना क्या है, वेस्ट है. अगर वो आपको जॉब में फायदा नहीं दे रहा है तो उसका पढ़ना वेस्ट है. तो उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन भी आपको पता रहना चाहिए कि ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ वो क्यों पढ़ रहा हूँ. तो उसी के लिए आई वेंट थ्रू कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या सीखने वाले हैं. आपका सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है. पहले यूनिट के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे मोस्टली. लाइनक्स क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, सेंटोस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन जनरल क्या होता है. बाय द वे, आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम कवर किया गया है? आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर हुआ है? बी एक्टिव गाइस, आप अनम्यूट होके बोल सकते हो. यस सर, फर्स्ट सेम में था ऑपरेटिंग सिस्टम। ओह थैंक गॉड. ठीक है ठीक है, अगर आप लोग ऐसा शांत रहोगे ना तो फिर अगर ऑफिस का मीटिंग होगा तो उसमें क्या बोलोगे. ऑफिस के मीटिंग में चुप रहने वालों को भाव नहीं मिलता. सेकेंड थिंग, जब आप लोग लास्ट ईयर, आप लोग थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो? थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में जब प्लेसमेंट होता है तो उसमें कुछ कंपनीज में पहला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन. और वो ग्रुप डिस्कशन में जो बोलता नहीं है ना उसको बाहर निकाल देते हैं. तो आप लोग उसका प्रैक्टिस डालो कि मीटिंग के अंदर कभी भी होता है ना तो उसके अंदर प्रोएक्टिवली बोलने का. अगर आप इसके बाद में सोचने लगोगे कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा ना, तो आप ग्रुप डिस्कशन से बाहर निकल जाओगे. एनीवेज, यू आर इन थर्ड ईयर, प्लेसमेंट आ चुका है आपको. थर्ड ईयर के तुरंत बाद इफ यू आर गोइंग टू डू जॉब, ठीक है, तो दिस विल बी हेल्पफुल. और डेवऑप्स का करियर बहुत शानदार होता है. बैकएंड का भी और फ्रंट एंड का भी करियर शानदार होता है. आजकल डेवऑप्स को बहुत पैसा मिलने लग गया है, क्योंकि खास करके जो ये सब AWS आ गया है, गूगल क्लाउड सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट का अज़्योर है. तो ये सब क्या है, ये सब को कौन हैंडल करता है, डेवऑप्स से हैंडल करता है. तो उसमें बहुत पैसा मिलता है, बहुत अच्छा करियर बन सकता है. तो लेकिन क्या है, आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए बेसिक. ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं. ये पहला यूनिट में ये सब सीखेंगे. इंट्रोडक्शन, कमांड लाइन क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क क्या हो सकते हैं, और मैनेजिंग सॉफ्टवेयर.
सेकंड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजिंग स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा रहेगा, या फिर अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप रहेगा तो उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि सी ड्राइव को कुछ स्टोरेज दिया रहता है, डी ड्राइव को कुछ स्टोरेज दिया रहता है, जेबी का रहता है ना। तो उसको लाइनक्स के अंदर आप कैसे मैनेज करते हो। विंडोज की जितना कठिन नहीं होता है लाइनक्स के अंदर। लाइनक्स के अंदर आपके पास एक्सेस होता है, आप उसको कमांड लाइन से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। फिर कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क, वर्किंग विथ यूजर ग्रुप एंड परमिशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है, वो भी मैं सिखा दूंगा कि अगर आपको किसी दूसरे आईपी में कनेक्ट करने का है, दूसरे मशीन में कनेक्ट करना है, वो कैसे करने का। तीसरा है वर्किंग विथ यूजर ग्रुप्स एंड परमिशन। कोई कोई फाइल रहती है, वो आप चाहते हो कि सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर्स को ही दिखे, ठीक है, सबको नहीं दिखे। उसको सबका या फिर कुछ ऐसी फाइल्स होते हैं जिसके अंदर सब लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, एवरीवन कैन रीड, नो वन कैन मॉडिफाई, तो वो सब यूजर ग्रुप एंड परमिशन में आएंगे। थर्ड में क्या है, सिक्योरिंग सर्वर विद आईपी टेबल्स। कौन कौन इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। सेटिंग अप क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज। आपके मशीन के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह रखी है उसको अच्छे से ऑब्फ्यूस्केट करना, छुपा के रखना। कॉन्फ़िगरिंग सर्वर फॉर फाइल शेयरिंग। आप ऐसा सर्वर बनाना चाहते हो कि आपने उसके ऊपर एक फाइल रख दिया उस जगह पे, तो सब लोग कोई भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। आप जो ऑनलाइन फाइल्स डाउनलोड करते हो ना, तो ये फाइल सर्वर पे रखा रहता है। ठीक है, तो फाइल सर्वर से आप क्या करते हो, उसको डाउनलोड करते हो। वो हम लोग सीखेंगे इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है, कॉन्फ़िगरिंग डीएनएस एंड डीएचसीपी। अगर आपका नेटवर्किंग हुआ रहेगा तो आपको ये पता होना चाहिए डोमेन नेम सर्विस क्या होता है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। या फिर अगर आपने कभी राउटर सेटअप किया रहेगा उसके सेटिंग में जाके, वाईफाई राउटर, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। सेटिंग अप अ मेल सर्वर, मेल भेजने के लिए, मेल आने के लिए। फिर कॉन्फ़िगरिंग अपाचे ऑन रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। अपाचे क्या होता है, वेब सर्वर होता है, तो वेब सर्वर को आरएचएल पे कैसे इंस्टॉल करते हैं वगैरह। लास्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू बैश शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। बहुत अमेजिंग चीज है, अगर आपके हाथ में आ गया ना तो आपको इतना मजा आएगा। आप रोजाना के काम एकदम चुटकी में कर सकते हो। यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकते हो। और बेसिकली आपको डे टू डे लाइफ में आप अगर कंप्यूटर पे कुछ काम करते हो ना, तो उसका एक स्क्रिप्ट लिख देने का और वो अपने आप ऑटोमेट होता रहेगा। उसको बोलते हैं मुंडेन टास्क को ऑटोमेट करना। ठीक है, वो कर सकते हो। फिर हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टरिंग, मैंने एचए के बारे में बताया कि एचए किसको बोलते हैं। आज के दुनिया में, आज के जमाने में क्या होना चाहिए, जो सर्विसेज रहती है वो विदाउट फेल हमेशा एक्सेसिबल होनी चाहिए। आपने देखा रहेगा कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब ये कभी डाउन नहीं होता है, हमेशा एक्सेसिबल होता है ना। अभी ऐसा कैसे हो गया कि एक कंप्यूटर के ऊपर कोई सिस्टम है, वो कंप्यूटर कभी खराब ही नहीं होता, वो कंप्यूटर कभी बंद ही नहीं होता, कभी पावर ऑफ ही नहीं होता, ऐसा होता है क्या। ये कहीं नहीं होता, यूएस में भी लाइट जाता है। तो वो, लेकिन वो हमेशा अवेलेबल कैसे होता है, तो उसके लिए एचए करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन, हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम सेटअप करते हैं। मतलब एक सिस्टम डाउन हुआ तो भी दूसरा सिस्टम तुरंत अप हो जाना चाहिए। ठीक है, विदाउट नोटिसेबल टाइम डिले, तो उसको बोलते हैं एचए, हाई अवेलेबिलिटी। तो उसको कैसे करने का, और फिर सेटिंग अप एंड इंस्टॉलेशन सर्वर। तो ये सब कोर्स के अंदर है। इतना बढ़िया कोर्स डिजाइन किया हुआ है तुम लोग एकदम रेडी करने के लिए कि झटपट सीखो, झटपट क्या करना करो, काम चालू करना चालू करो। लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू थिंग्स, यू ट्राई थिंग्स ऑन योर ओन। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बुक्स, आप लोगों ने बोला हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, नो बुक्स। ओके, लेकिन कौन सा ऑनलाइन क्या पढ़ते हो, ये मेरा क्वेश्चन था। और कौन, और कोई बता सकते हैं बुक्स पे तुम लोग क्या रेफर करते हो। सर ये फर्स्ट वाला है ना, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 6, वही हाँ, कॉलेज में ले रहे, उससे ही ले रहे। उससे ही ले रहे हैं। कॉलेज पे कितना कंप्लीट हो गया, कितना हो गया कॉलेज में। ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट हो गया, मतलब बेसिक उनके कमांड है ना स्टार्टिंग में, मतलब हम्म, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसमें कंटेंट डालने के लिए, वही बेसिक हो गया। ओके, कौन से कॉलेज में हो तुम। बांदोड़कर कॉलेज थाना। खाने के लिए बंद कॉलेज।
ठीक है, वहाँ पे ये कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट मतलब बोल रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के बच्चों के पूछा था तो हाँ, बोलते हैं कि 2-3 कंपनियां अच्छे से आती है, मतलब टीसीएस वगैरह आती है, टीसीएस, जेपी मॉर्गन, इंफोसिस वगैरह आती है बोलते हैं। बेस्ट है, ठीक है, चलो मतलब बेसिक तो चालू हो ही जाएगा, खाना पानी। और कोई? बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर बोलना नहीं चाहते हैं, शर्म आ रहा है बाकी लोग? बोल सकते हो यार, इसमें क्या शर्म है? ठीक है, आई अज्यूम कि सब लोग फर्स्ट बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए पूछा कि आई डोंट वांट यू टू रेफर एनी अदर पब्लिकेशन। मार्केट में मेरे को सिर्फ टेकमेक्स का नाम पता है, आप लोग को दूसरा नाम पता होगा कि कोई दूसरा बुक भी आता है जिसके अंदर शॉर्ट में सब कुछ सिखा दिया जाता है और एक्चुअली खास कोई नॉलेज आता नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये बुक बाय करो, सेकेंड हैंड लो, थर्ड हैंड लो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन बुक होना जरूरी है। आपको बुक को क्या करना रहता है, रेफर करना पड़ता है। बुक पढ़ने में मजा भी आता है क्योंकि वो ऑथर का अपना खुद का एक स्टाइल होता है स्टोरी वाइज बताने का, सिर्फ सिलेबस में रहता है, ठीक है। तो सब लोग इसमें से कोई ना कोई बुक क्या करेंगे, ले लेंगे। बुक के ऊपर पैसा खर्चा करने से डरने का नहीं, ठीक है। ये बहुत अभी बहुत महंगा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये चीप होता है, उसके लिए तो आप पैसा निकाल सकते हो। अगर कॉलेज के फीस के लिए पैसा निकाल सकते हो तो आप बुक्स के लिए भी पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करने का, बुक्स बाय करने का या फिर अपने सीनियर से लेने का या फिर किसी तरीके से अरेंज करने का, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे लाइनेक्स पे। तो सबको पता है लाइनेक्स होता क्या है? इज एवरीवन फैमिलियर और नॉट? यस और नो में आंसर दे देंगे सब लोग। इज एवरीबॉडी ऑनलाइन? हाँ, एक जन का आया। वैशाली को पता है लाइनेक्स, अस्मिता, श्रेयस को सबको पता है लाइनेक्स क्या होता है, प्रथमेश को भी पता है, HP 0.09 को भी पता है। बाय द वे इसको लाइनेक्स बोलते हैं कि लिनक्स बोलते हैं? हाँ, तो उसको बोलते क्या है? अच्छा, मतलब यू आर सेइंग लिनक्स बोलते हैं, लाइनेक्स नहीं। और सब लोग एग्री करके इसको लिनक्स बोलते हैं। स्कूल में भी लिनक्स सिखाया जा रहा है, लिनक्स ही बोला जाता है। यस सर, लिनक्स ही ज्यादा सुना है। ठीक है। तो आप इवन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड पीपल कॉल इट लिनक्स एंड पीपल कॉल इट लाइनक्स, ठीक है। क्यों? दोनों प्रोनाउंसिएशन बराबर है, आपको जो बोलना है, ऐसा नहीं कि कोई ढंग है अच्छा है। तो लाइनक्स इज अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स पता है क्या होता है? यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन वो क्या था, जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो लोग ना शेल बेस्ड होते थे। और आपको कुछ यूआई दिखता नहीं था सामने, जैसा आपको दिख रहा है ना अभी कंप्यूटर के ऊपर, वैसा कुछ नहीं दिखता था आपको। वो कंप्यूटर चालू करोगे ना तो ऐसा सिर्फ एक ही स्क्रीन रहता था उसके ऊपर, बाकी कुछ नहीं रहता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो यूनिक्स बेस्ड, वो ऐसे थे। तो लाइनेक्स में क्या है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स को ध्यान में रख के यूनिक्स के ऊपर ही बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। बेस्ड ऑन लाइनेक्स कर्नल an operating system kernel first released on September 1991 by Linus Torvalds। तो ये जो लाइनस टोरवॉल्ड जो बंदा है वो अभी भी जिंदा है। आई विश इसका मैं फोटो आपको, सब लोग को लाइनस टोरवॉल्ड के बारे में पता है?
तो दिस इज, ये बहुत वो है, कंट्रोवर्शियल बनता है लाइनस टॉर्मॉन्ट, लेकिन जीनियस है। और तब से लेके अभी तक ये लाइनस के अंदर क्या कर रहा है, कुछ न कुछ चीजें ऐड कर रहा है और वगैरह वगैरह कर ही रहा है। तो जीनियस बनता है, वेरी जीनियस। तो इसने क्या किया, लाइनक्स का निर्माण किया। ठीक है, तो इसी के नाम से अपने को क्या पड़ा है, लाइनस का, लाइनस के नाम से लाइनक्स पड़ा है। ओके, तो और लाइनक्स आने की वजह से चीजें काफी मतलब फेमस हो गए। क्यों? बिकॉज इट वाज फ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फ्री। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फ्री, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फ्री। और फ्री का मतलब क्या होता है, हम लोग के सिस्टम में तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट में आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत बड़ा बिल भेज देगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। essentially because of this people use क्या, लाइनक्स। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम द रेड हैट। रेड हैट कंपनी का नाम है, और वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी देखो, लाइनक्स क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि उसका कोड ना सबके पास अवेलेबल है। ठीक है, कोड सबके पास, सबको ओपन सोर्स के बारे में पता है क्या? लेट्स मेक दिस, ओपन सोर्स क्या होता है? जो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल होता है उसको ही ओपन सोर्स शायद कहते हैं। लेकिन फ्री मार्केट में तो वीएलसी मीडिया प्लेयर भी है, और मार्केट में फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम लोग सबको ओपन सोर्स नहीं बोलते हैं। और कोई, anybody can access its source code, right? Anybody can access its source code, ऐसे उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। तो आप EXE नहीं, सिर्फ इंस्टॉलेबल फाइल्स नहीं, सॉफ्टवेयर सिर्फ नहीं, उसका कोड भी साथ में मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी उसके अंदर भी बहुत सारे लाइसेंस आते हैं। उसमें लाइसेंस का मतलब कि कोड तो अवेलेबल है, लेकिन आप ये कोड का भी यूज कर सकते हो, कमर्शियली यूज कर सकते हो कि नहीं, ये सब बहुत सारा झंझट उसके अंदर रहता है। MIT लाइसेंस इज बेस्ट, उसमें बोला जाता है कि बिंदास यूज करो, बस मैं तो एक DIY करके दे देना। एनीवेज, तो लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सोर्स कोड अवेलेबल है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट कैन डायरेक्टली मैनेज सिस्टम हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। सिस्टम का हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हार्डवेयर और रिसोर्स को मैनेज करता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या हो जाता है, तुम्हारा रैम हो जाता है, तुम्हारा CPU हो जाता है, तुम्हारा हार्ड डिस्क हो जाता है। ठीक है, CPU में लिखा भी है स्टोरेज, तो ओवर सिट्स ऑन बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। ठीक है, आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर है, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम बैठता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है हार्डवेयर यूज करने के लिए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसका CPU, उसका हार्ड डिस्क, ये सब यूज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए लाइनक्स क्या है। ठीक है, तो ये लाइनक्स ऐसा है, और ओपन सोर्स है। तो रेड हैट क्या करता है, उसने उसका ओपन सोर्स लिया, उसमें उसने खुद का कुछ फ्लेवर डाला। आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, लाइनक्स का सोर्स कोड लिया, उसमें उसने खुद का कुछ चेंजेस किया, अभी उसको वो रेड हैट RHEL एंटरप्राइज लाइनक्स करके बेच रहा है। वो उसका फीस लेता है, RHEL का फीस है। RHEL फ्री नहीं होता है, RHEL का फीस होता है। तो रेड हैट क्या करता है, अपना खुद का एक फ्लेवर बेचता है। और रेड हैट जैसा फ्लेवर बेचता था, उसके जैसे एक दूसरा भी कंपनी था, CentOS, CentOS, CentOS था, जो एग्जैक्टली लाइनक्स RHEL जैसा देता था, लेकिन वो फ्री देता था, मतलब आप उसका यूज कर सकते हो फ्री में। तो जहां तक मुझे पता है, थोड़े टाइम पहले रेड हैट ने CentOS को भी ले लिया। CentOS अभी भी फ्री है, लेकिन CentOS को बाय कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अगर CentOS फ्री है, तो लोग RHEL को यूज ही क्यों करते थे? तो उसका आंसर है कि कंपनी में जब आप काम करते हो ना, तब आपको रिलायबिलिटी चाहिए रहता है, आपको अटकना नहीं चाहिए रहता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया, तो आपको उसको सॉल्व करके देना चाहिए, मतलब बोलते हैं उसको सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए लोग RHEL बाय करते थे। CentOS को यूज करोगे, उसमें तुमको कुछ तकलीफ हो गया, कहीं चल नहीं रहा है, तो तुम किसको लिखने जाओगे कि मेरा इश्यू सॉल्व करके दो? कोई तुमको हेल्प नहीं करेगा।
लेकिन RHEL को उसका कस्टमर केयर रहता है, उसके अंदर तुम बात करके अपना इशू सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखा है OS like a car engine, an engine can run on its own, but it becomes functional car when it's connected with a transmission, axle and wheels. Without the engine running properly, the rest of the car won't work. ठीक है। तो लाइनक्स क्या करता है, सारे हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है, एक इंटरफेस आपको देता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने का। सो दिस इज अबाउट लाइनक्स। मैं कोशिश करूंगा कि दिस एंटायर कोर्स विल बी अ हैंड्स ऑन कोर्स, जहाँ पे आप खुद क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और जब आप इस कोर्स से निकल के जाओ, देन ऐसा ऐसा होना चाहिए कि यू कैन वर्क एज ए जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर,